Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Grade School. Today I start with Standard 7. Students, in my previous class I had finished with the History Lesson 5. Okay, so today we will discuss its question answers. First I will explain you a small summary of this अगर किसी ने मिस किया हो या किसी ने मेरी वीडियोस नहीं सुनी हो, and after that I will discuss the question answers of page 73. That is History Lesson 5. Rulers and Buildings. In medieval period, rulers built private and public buildings like forts, palaces, tombs, temples, mosques, tanks. That is why the name of the lesson is Ruler and the Buildings. यानी buildings includes forts, palaces, tombs, temples, mosques and tanks. Okay, monuments provide an insight into the technologies used for construction. Between the 7th and the 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. मतलब जब पहली बार जब बिल्डिंग्स वगैरह बनते थे तो बहुत छोटे छोटे बनते थे, लेकिन जैसे जैसे एरा बीतता गया और ज़्यादा कारीगर स्किल मिलने लग गए तो बड़ी बड़ी वास्ट फोर्ट्स, पैलेसेस, बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई जिसमें काफ़ी सारे रूम, काफ़ी सारे जैसे डोर्स, विंडोज़ हुआ करते थे. हैव यू सीन रेड फोर्ट? रेड फोर्ट कितना बड़ा और कितना आलीशान है. उस टाइम वो लास्ट मुग़ल राज यानी बहादुर शाह जफ़र वहाँ पे रह के गए थे. Roofs, door and windows were made by placing a horizontal beam. आप देख सकते हो, you can see the pages. ये मैंने आपको सब explain किया जब मैंने आप ये lesson explain किया था. All those pics, that is roof, doors and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called Tribet or Corbelled. Tribet or Corbelled. Yes, you can. This is on page number 61. Tribet or Corbelled. Two technological and stylistic developments from the 12th centuries are arcuate. That is page number 63. Arcuate. Architectural form and use for limestone mixed with stone chips that led to faster construction. Assimilation of Indian style, उसके बाद पर्शियन स्टाइल बीच में मिक्स होने लग गया था. थोड़ा बहुत पर्शियन स्टाइल की झलक भी देखने को मिलती थी. That is assimilation of Indian style with Persian style of architecture was prominent. Then page number 63, that is building temples, mosques and tanks. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship and meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. The largest temples were also constructed by kings. The other lesser deities in the temples were gods and goddesses of the allies and subordinates of the rulers. यानी जो बड़े बड़े रूलर्स राज करते थे या तो फिर जो छोटे रूलर्स थे. ऑन पेज नंबर 63 यू कैन सी किंग राजा राजदेव राय, उन्होंने भगवान के नाम पे अपना नाम रखा था. राजा राजेश्वरा टेम्पल, और राजा राजेश्वरम भगवान का नाम था. क्यों? बिकॉज वो दिखाना चाहते थे दुनिया को कि मैं कितना क्लोज हूँ भगवान से. वैसे भी उस वक्त के राजा जो भी टेम्पल, मॉस्क बनाते थे वो दिखाना चाहते थे कि हम भगवान के कितने करीब हैं. इसलिए हम भगवान का घर दिल से बना रहे हैं, खुला पैसे से बना रहे हैं, खूब बड़े बना रहे हैं और फाइन आर्किटेक्चर, आर्ट्स, कल्चर स्किल होगा उसके अंदर. The largest temples were also constructed by kings. The other lesser deities, yani idols of gods and goddesses in the temples, were of the allies and subordinates of the rulers.
क्या हुआ? Muslim sultans and Padshah did not claim to be the incarnations of God, but Persian court chronicles describe the Sultan as the shadow of God. That is on page number 64. As each new dynasty, जैसे जैसे एरा बीतता गया, न्यू डायनेस्टी आती गई, अपना पावर उसने दिखाया, किंग्स वांटेड, और जैसे जैसे न्यू एरा आया, जो किंग महाराजा राज महाराजा दरबार हुआ करता था, वो दिखाना चाहते थे कि मैं पहले वाले से ज़्यादा पावरफुल हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, पहले वाले ने जो टेम्पल बनाया, जो मॉस्क बनाया, उससे बड़ा मैं बना सकता हूँ, और भी ज़्यादा आर्किटेक्चर स्किल उसमें होगा. It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. Okay, that is वो बस यही है, that I had explained you कि वही दिखाना चाहते थे कि पहले की राजा महाराजा से ज़्यादा बड़ा हम टेम्पल्स बना सकते थे. यानी भगवान ने हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबानी की है, और हम मतलब रेन मतलब पैसा, कि हम पहले से भी ज़्यादा टेम्पल्स बड़े बड़े बना सकते हैं, और अपनी पावर दिखाना चाहते थे कि हम दुनिया में क्या है. यू नो, टेम्पल्स, जितने बड़े टेम्पल्स बनाते थे ना, उनके हिसाब से वो राजा की पावर, पैसा, वेल्थ से पहचाना जाता था. Why were the temples destroyed? That is, why were the temples targeted? Page number 65. पहले जब लड़ाइयाँ होती थी, ओके, लोग जो राइवल टीम थी, या वो सबसे पहले जो उन्होंने कुछ बहुत हेरिटेज प्रेस्टीज चीज़ बनाई थी, उसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करते थे. मतलब उनका जो गुरूर होता था, जो क्या बोलते थे, बोस्टिंग करते थे कि यस, मतलब हमने ये बनाया है, और देश पूरे दुनिया भर में उनकी तारीफ होती थी. तो सिंस किंग्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट, सबसे पहले तो टेम्पल्स बनते थे, वो दिखाना चाहते थे कि हम भगवान के कितने करीब है, दैट इज़ डिवोशन टू गॉड. उसके बाद उनकी पावर, उनकी वेल्थ, दे अटैक्ड एंड टारगेटेड दिस बिल्डिंग्स. तो इसलिए ये कमज़ोर बनाने के लिए जब लड़ाइयाँ होती थी, तो सबसे पहले ये टेम्पल्स, मॉस्क को टारगेट किया जाता था. व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम्स इन द अर्ली 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. यानी जिन भी रूलर्स को हरा देते थे, उनके टेम्पल्स में जितना भी महंगा गोल्ड का सामान था, वो लाकर अपने जगह में रख देते थे, अपनी टेम्पल्स में. दैट इज़ 11th century में जब चोला डायनेस्टी का राजेंद्र वान, उन्होंने शिवा टेम्पल बनाया, तो उसके अंदर जो भी बड़ी बड़ी प्रेस्टिजियस मतलब गोल्ड की चीज़ें थी, ओके, बड़े ह्यूज टेम्पल्स थे, वो उन्होंने अपने वहाँ पे लाके रख दिए, जो उन्होंने दूसरे प्रिंसली स्टेट्स को हराकर जीता था. देन गार्डन्स, टूम्स एंड फोर्ट्स, दैट इज ऑन पेज नंबर 66. अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स. जब मुग़ल डायनेस्टी आई, तब तो आर्किटेक्चर और भी ज़्यादा बढ़ गया, और भी कॉम्प्लेक्स होने लगे, और भी मतलब कि स्किल लोग आ गए थे. और भी जैसे कुतुब मीनार, आपने देखा कभी कुतुब मीनार, क्या ब्यूटीफुली बनाया गया है, उसका आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, यानी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मुग़ल डायनेस्टी का टाइम, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है. दैट इज़ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ओके, औरंगज़ेब were personally interested in literature, art and architecture. ये जो मुग़ल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, ये आर्किटेक्चर में ज़्यादा और ज़्यादा बिलीव करते थे, और कुछ बहुत एक्स्ट्रा लेके आए हैं वो. बाबर गॉट गार्डन्स कॉल्ड चाहर बाग, यानी 4 gardens built in Kabul. They were further constructed in Kashmir, Agra and Delhi by Akbar, Jahangir and Shah Jahan.
Akbar's architecture is visible in his father Humayun's tomb. कभी आप हुमायूं टूम देखोगे ना तो वहाँ पे आपको अकबर के जो फादर हैं उनकी मतलब बाबर की हुमायूं की टूम नज़र आएगा, जिसमें यूनिक स्कल्पचर है, बहुत वास्ट और बहुत यूनिक स्कल्पचर. अंडर शाहजहां मुगल आर्किटेक्चर वॉज फ्यूज्ड टुगेदर इन अ ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस. और जब शाहजहां का समय आया फिर तो बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही ह्यूज फोर्ट्स पैलेसेस बनने लगे कि इंसान खो जाए. आप पूरा 1-2 किलोमीटर का एक राउंड लगा के लेके आ सकते हो अपने साइकिल के थ्रू. इतने बड़े बड़े फोर्ट्स पैलेसेस बनते थे, ग्रैंड बनने लग गए थे शाहजहां के टाइम पे. द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, जैसे दीवाने खास एंड दीवाने आम, वर केयरफुली प्लान्ड. इतने बड़े बड़े हॉल बनते थे, दरबार बनते थे जहाँ महफिल होती थी, लोग आते थे काफ़ी मास में, क्राउड में, बहुत बड़े खुले बनते थे, आलीशान. शाहजहां एडेप्टेड द चहरबाग टेक्निक इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल. और वो जो बाग जो बाबर ने बनाया था, ओके, वही टेक्निक सेम शाहजहां ने जब ताजमहल बनाया तब आप देखो हर तरफ गार्डन्स है, खूब ऐसे बीच में चैनल्स भी है पानी का. फिर आगे जाके आपको रेड फोर्ट मिलेगा, पूरा वो क्रॉस करके जाना पड़ता है, पहले पूरा गार्डन है. तो वो जो बाबर का जो ये लेआउट था ना, समवॉट शाहजहां ने वो टेक्निक वो अपनाई थी ताजमहल बनाने के समय. द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल accomplishment of his reign, मतलब उनके राज का ये सबसे बेहतरीन ग्रैंड ताजमहल बनाया था शाहजहां ने. Then we go to page number 71. Region and empire. As construction activity increased, जैसे जैसे डायनेस्टी आती गई, न्यू एरा आता गया, कंस्ट्रक्शन और भी बड़ा होता गया. बिटवीन द 8th and the 18th centuries, कितना वास्ट 8 से लेके 18th सेंचुरी, डिफरेंस तो आएगा ही ना. There were also a considerable sharing of ideas across regions. In Vijayanagar, for example, the elephant stables of the rulers was strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. एक एग्जाम्पल है, इन विजयनगर में जो एलिफेंट का अस्तबल, जो एलिफेंट्स रखे जाते हैं, वहाँ पे भी वहाँ का जो स्कल्पचर है वो देखने को मिलेगा आपको सेम बीजापुर और गोलकोंडा में. फिर इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, जो थोड़ा सा रेप्लिका है जो मुगल डायनेस्टी में फतेहपुर सिकरी में जो बनाया गया है ना, उसका थोड़ा बहुत झलक रेप्लिका आपको देखने को मिलेगा. ओके. देन द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर, जोर से, दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल, helped in this cross fertilization of artistic forms and architectural styles. फिर और जब आगे आए बड़े बड़े एम्पायर्स आए, बड़े बड़े राजपाट होते थे, वो कॉम्बिनेशन लेके आए, आर्टिस्टिक फॉर्म्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल का कॉम्बिनेशन से वो मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन जैसे बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन से उन्होंने फिर आगे बनाना शुरू किया था. राइट. Then the Mughals adopted the Bangla Doom in their architecture. एक बार मुगल्स है वो बांग्लादेश गए थे, वहाँ पे जो इनके टेम्पल्स है ना, उनके डूम को देखकर, जैसे उनके डूम थे ना, उनको देखकर उसके बाद से मुगल डायनेस्टी ने जो भी आर्किटेक्चर बनाया, मॉस्क बनाया, टूम बनाया, वो मतलब अब उनका हर एक ऐसा टूम भी होता है. ऑलवेज आप देखो उनका टूम होता है, मॉस्क में टूम होता है. ओके. वो बांग्ला डोम से वो उन्होंने अडॉप्टेड किया था, दे वर इंस्पायर्ड. और फिर
बनाना शुरू किया था. Between the 8th and the 18th centuries, kings and their officers built two kind of structures. The first were forts, palaces, gardens, residences and tombs. और जो second थे वो थे for the public activity. Temples, mosque, tanks, bazaars, वो उन्होंने मतलब दो तरीके के बनाए थे. Merchants and others also carried out construction activity. जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले मर्चेंट्स थे उन्होंने भी बनाया था. उन्होंने भी मॉस्क बनाया, टेम्पल्स बनाए, वेल्स बनाए. ओके, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द मॉन्यूमेंट्स आर यूनिक. जो टेक्नोलॉजी इन्होंने अपने मॉन्यूमेंट्स बनाने में यूज़ की थी वो यूनिक थी. आज वो है ही नहीं, वो तो होंगे ही नहीं क्योंकि वो कारीगर तो रहे ही नहीं है. आज तो मैक्सिमम मशीन वर्क है, या अगर कुछ हाथ से कारीगर करने वाले हैं भी लेबर वर्क, तो वो कला नहीं है आज के लोगों में. वो तो उन टाइम के लोगों में वो कला थी, वो स्किल था. सो द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द मॉन्यूमेंट्स वर यूनिक. It requires sophisticated skills in making a large room with an elaborate superstructure. Between the 7th and the 10th centuries, architects started. Okay, sorry, that was over. Okay. So that was the end. आप देख सकते हो ऑन पेज नंबर 72 बांग्ला डूम एंड ऑल दैट. उसको इंस्पायर होके मुगल डायनेस्टी ने उसके बाद हमेशा डूम बनाया. एंड चर्चेज यू कैन सी, पेरिस का कितना पुराना चर्च है नोत्रे देम. जो 12th और 13th सेंचुरी में बना हुआ था. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अ स्मॉल रिकैप of this lesson. Now we go to page number 73, question answers. That is, how is the Tribet principle of architecture different from the arcuate? Answer: in Tribet, principle of architecture, roofs, doors and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns. In arcuate principle of architecture, the weight of the superstructure above the doors and windows was carried by arches. मतलब हमारे रूफ को आज हम लोग भी हम लोग भी अपने बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो बीम सपोर्ट पे रखा जाता है. बहुत मोटे मोटे बीम बनते हैं स्ट्रॉन्ग, ताकि ऊपर के पोर्शन को सपोर्ट कर सके वो. व्हाट इज शिखारा? अ शिखारा इज अ टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन ऑफ अ टेम्पल. जैसे आपके टेक्स्ट में यू गो टू पेज नंबर 62, आप देख सकते हो ये जो टेम्पल कंदरिया महादेवा टेम्पल और राजेश्वर टेम्पल जो सबसे टॉप है ना, उसको शिखारा बोलते हैं. द टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन ऑफ अ टेम्पल दिख रहा है आपको, इट इज कॉल्ड शिखारा. व्हाट इज पेट्रा डूरा? पेट्रा डूरा refers to the colored hard stones placed in depressions carved into marble or sandstone which create beautiful ornate patterns. इसे पेट्रा डूरा कहता था. ओके, जैसे एकदम डल होता है ना, उसके अंदर आप उसे लगाते हो, एनिमल करते हो, दैट इज पेट्रा डूरा. नेक्स्ट, what are the elements of a Mughal Chaharbagh garden? Mughal Chaharbagh consists of 4 gardens.
These gardens are placed within the rectangular walled enclosures divided into 4 quarters by artificial channels. देखो, you can see this, ये चाहर बाग, ये पेज नंबर, yes, see, you can see this page number 67. देखो, you can see this, okay, ऐसे ऐसे है, क्रॉस में चैनल्स बनाए गए हैं, दिख रहे हैं आपको पानी के, ताकि अपने आप पानी उन गार्डन्स में जाता रहे। और ऐसा ही सिस्टम शाहजहां ने ताजमहल में बनाया है। विदिन ऐसे रेक्टेंगुलर 4 गार्डन बनाए हैं और बीच में चैनल्स है, डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय द आर्टिफिशियल चैनल्स। हाउ डू अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग? दिस इज अ ह्यूज आंसर। फिर नेक्स्ट ऑल्सो एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां's दीवाने खास इन दिल्ली स्टेटेड, if there is paradise on the earth, it is here, it is here, it is here. How was the image created? How did the Mughal court suggest that everyone, whether he is rich or poor, the powerful or the weak, receive justice equally from the emperor? What role did the Yamuna play in the layout of the new Mughal city in Jahanabad? Then, okay, so these are the 9th one. Next question, that is the rich and the powerful, page number 74. The rich and the powerful construct large houses today. In what ways were the construction of kings and their courtiers different in the past? Then we go to question 10. Look at figure 4. How could that building be constructed faster today? Figure 4, page number 62. Find out whether, again we go to page number 74. Find out whether there is a statue of or a memorial to a great person in a village or town. Why was it placed there? What purpose that it served? This is, students, you can write of your own. Next, visit and describe any park or garden in your neighborhood. In what ways it is similar to or different from the gardens of the Mughals? Then we go to very short answers type questions. Come on. Why was limestone cement used in construction of large structures? Limestone cement was very high quality cement which when mixed with stone chips, you know stone के chips होते हैं, ज़्यादातर लोग अपने टेरेस में लगाते हैं, पानी नहीं आता है, hardened into concrete. This made construction of large structures faster and easier. कई लोग तो अपने भी घर के बाहर भी ये स्टोन चिप्स लगाने लग गए हैं. How did the Persian court chronicles describe the Sultan? Persian court chronicles describe the Sultan as the shadow of God. Name the ruler, वो कौन रूलर थे, who won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi Khuna. He was Sultan Iltutmish. Sultan Iltutmish. What are the special features of Humayun's tomb? एक तो it has a central towering dome. Okay, बहुत अंदर गहरा डूम है. And it has a tall gateway. उस टाइम पे उसको कहा जाता था पिश्ताक. What was Mahamandap? It was the main hall in the temple where dances were performed. Ancient time की बात है.
Name the temple built by King Raja Rajadeva. क्या नाम था? राजा राजेश्वरा टेम्पल. When was the tomb of Humayun built? It was built between 1562 and 1571. Who constructed the Kandariya Mahadeva temple? King Dhangadeva of Chandela dynasty constructed the Kandariya Mahadeva temple. Where was Shah Jahan's capital in the earlier years of his reign? कहाँ था? It was in Agra, Shahjahanabad. What is the special feature of Fatehpur Sikri? अकबर का कैपिटल था. Many of the buildings show the influence of the architectural styles of Gujarat and Malwa. Name the king who invaded Sri Lanka and whom did he defeat? He was King Shri Mara Shri Vallabha, and he defeated the King Senavan. What were Havelis? Haveli. They were large mansions of merchants. Haveli. कई बार आप देखते हो ना, अभी आजकल फिल्म्स आती हैं हवेलीज, हवेली, पुरानी हवेली, भूत की पिक्चरें और घोस्ट स्टोरीज होती है इसके अंदर फिल्म की शूटिंग होती है हवेलीज. हाउ डिड द किंग्स विन द प्रेज ऑफ देयर सब्जेक्ट्स? मतलब सब्जेक्ट्स यानी उनके फॉलोअर्स. बाय बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटीज सच एज टेम्पल, मॉस्क, टैंक, वेल, बाजार्स, ताकि लोग इस खुश होकर अब महाराज की बहुत तारीफ करें. इसलिए वो ये सब कुछ बनाते थे ताकि उनका जो नाम है पूरा वर्ल्ड में मशहूर हो कि देखो ये राजा अपनी प्रजा के बारे में कितना कुछ सोचते हैं, इन्होंने क्या क्या बनाया है. राइट. Okay students, now an important information. मैंने subject enrichment activity I had posted in your class 7 group. Okay, just go through it and start preparing from the today onwards. अच्छी तरह से बनानी है और मैंने लिखा भी है कहाँ send करना है. Okay, and the last date of that C is 15th of October. उसके बाद अगर किसी ने भी भेजा, that will not be accepted. So please, okay, start doing from the today onwards और अच्छी तरह से you have to make. Okay, you can color, आप pencil colors, chalk colors भी use कर सकते हो. Only pencil and chalk colors. अगर आपके पास घर पे है, नहीं है कोई बात नहीं. Okay, so that I had mentioned, मैंने सब कुछ mention किया हुआ है in your class group. Just go through it and start doing from today onwards. You can refer your textbook. मैंने lesson numbers भी लिखे हैं and अच्छी तरह से आपको करना है because that will include 10 marks for your second periodic test. And also I hope आपको second periodic test का syllabus मिल चुका है और मैंने काफ़ी सारे lessons की PDF दे चुकी हूँ. लास्ट 2 लेसन्स के मेरे शायद PDF बाकी है. ओके, लास्ट 2 लेसन्स के मेरे बाकी है. दैट आई विल गिव यू बाय टुमारो. बाकी मैंने सभी के आपको क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा MCQs भी उसी के अंदर PDF बना के दिया हुआ है. राइट, सो यू कैन कॉपी करो अपनी स्कूल बुक में. कंप्लीट योर बुक्स. अब जब कॉपी करोगे आपको लर्न भी हो जाएगा. गो थ्रू द टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट ऑल्सो. कंप्लीट योर बुक्स, उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे. आपके ये जो C एक्टिविटी है उसका 10 मार्क्स है और ओनली 2 लेसन्स का मेरा PDF बाकी है. बहुत जल्दी आई विल गिव यू दैट. ओके, एज सिलेबस शायद आपको मिल चुका होगा.
history lesson 2, 3, 4, then 2, 3 political science and environment 3, 4, 5. Okay, और mostly मैंने सभी के दे दिए आपको क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ. only 2 lessons are left that I'll be given tomorrow or day after tomorrow मिल जाएगा. Okay, so prepare yourself. Okay, and please go through the text, read the text daily. So with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.